Hello students, welcome in Classic Economics in Punjabi. Students, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग एग्रीकल्चर। खेती नाल संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है खेती दियां समस्यावां, प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर, या इसनूं आपां कह सकते हैं भारत विच खेती दे पिछड़ेपन दे मुख कारण, मेन कॉज ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। तो ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੈਕਚਰ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਏ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਲਿਸਟ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੀ ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮੈਟਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भारत विच खेती दी समस्यावां, प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर। खेती दी समस्यावां नूं या भारतीय खेती दे पिछड़ेपन दे कारणों नूं तीन पार्टां विच वंडिया है मैं। सब तो पहला है मनुखी तत्व यानी कि ह्यूमन फैक्टर, दूसरा है संस्थागत तत्व यानी कि इंस्टीट्यूशनल फैक्टर, और तीसरा है तकनीकी तत्व ਟੈਕਨੀਕਲ ਫੈਕਟਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਲਓਗੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੰਡਦੇ, ਸਿੰਪਲ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਕਾਜ਼ਸ ਆਫ ਬੈਕਵਰਡਨੈਸ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਪਿਛੜੇਪਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੈਡਿੰਗਸ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। 6 7 8 9 10 ਜਿਹੜੇ ਹੈਡਿੰਗਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਵੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਟਾਗਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਤੱਤ। ਮਨੁੱਖੀ ਤੱਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਪਿਛੜੇਪਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਭੂਮੀ ਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਦਬਾਅ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਖੇਤੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ 70% ਦੇ ਲਗਭਗ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਜੋ ਭੂਮੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਵੱਧ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਹੈਕਟੇਅਰ ਲੈਂਡ ਤੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਨਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਭੂਮੀ ਤੇ ਜੋ ਵੱਧ ਦਬਾਅ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਪਿਛੜੇਪਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਛਿਪੀ ਹੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਗਸਟ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਉਹੀ ਕੰਮ 5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 5 ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਉਹ ਉਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। तो 2 एक्स्ट्रा परसन ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਪਿਛੜੇਪਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। 1901 ਵਿੱਚ 16 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਖੇਤੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 2016-17 ਦੇ ਵਿੱਚ या आजकल कह सकते हो इस डाटे ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 110 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं खेती ते।
ਪ੍ਰਤੱਖ ਔਰ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ, ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਪਿਛੜੇਪਨ ਦਾ। तो फर्स्ट पॉइंट की लिखोगे भूमि ते जनसंख्या का दबाव। दूसरा पॉइंट है, ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा है मनुखी तत्व दे समाजिक वातावरण, सोशल एटमोसफेयर। साडा जो समाजिक वातावरण है वो भी कारण है भारतीय खेती के पिछड़ेपन का। सब तो पहला समाज दे विच अनपढ़ता, अनपढ़ता इलिटरेसी एक सब तो बड़ा कारण है। अनपढ़ता बहुत ज़्यादा है, ज़्यादातर किसान अनपढ़ हैं। अनपढ़ किसान जिहड़े हैं वो खेती दी आधुनिक जिहड़े खेती दे आधुनिक ढंग है उन्हां दा पूरी तरह नाल प्रैक्टिकल नहीं कर सकते, यानी कि मॉडर्न टैक्निक्स नूं अप्लाई नहीं कर सकते अनपढ़ता के कारण। अनपढ़ता दे नाल वो भाग्यवादी हैं, किस्मतवादी हैं, फैटलिस्टिक हैं, यानी कि ज़्यादातर किस्मत विच विश्वास रखते हैं। उन्हां दी जिहड़ी सोच है भाग्यवादी है, किस्मतवादी है, नाल ही रूढ़ीवादी भी है। इस करके वो एफर्ट्स नहीं लाते। साडा समाजिक जिहड़ा ढांचा है वो इस तरीके का है जो भारतीय खेती नूं बैकवर्ड बना दिंदा है। अनपढ़ता, किस्मतवाद या भाग्यवाद, रूढ़ीवाद, तो वो जो खेती के आधुनिक ढंग है, आधुनिक तरीके हैं, वो अप्लाई करने दे विच असमर्थ रह जाते हैं। ज़्यादातर लोग कास्टिज्म विच विश्वास रखते हैं। एक पर्टिकुलर कास्ट के लोग पर्टिकुलर ही काम करते हैं, वो कोई नवा काम करना नहीं चाहते। तो इस करके भारतीय खेती के पिछड़ेपन के कारणों विच जो मनुखी कारण है, मनुखी तत्व है, वो है समाजिक वातावरण। तो ये सी सैकेंड पॉइंट। तो मनुखी तत्वों के दो ही पॉइंट डिस्कस करने तुसी, भूमि ते जनसंख्या का दबाव और सामाजिक वातावरण, प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन लैंड और सोशल एटमोसफेयर। दूसरा जिहड़ा कैटेगरी है दूसरी, वो है संस्थागत तत्व। पहला की सी मनुखी तत्व, दूसरी की है संस्थागत तत्व। संस्थागत तत्व विच जो पॉइंट है इसनों आप मान लो तीसरा पॉइंट कह दिए। जेकर तुसी कॉमन लिखते आओ, जेकर इन्हां कैटेगराइज नूं डिफाइन ना करो, तो फर्स्ट पॉइंट हो गया भूमि ते जनसंख्या का दबाव, दूसरा हो गया सामाजिक वातावरण। जे कैटेगराइज लिखोगे तो बहुत वधिया है, जे नहीं तो तुसी सीधा भी लिख सकते हो। वो है खेतां दा छोटा आकार। भारत विच खेतां दा औसत आकार बहुत छोटा है। भारत विच खेतां दा औसत आकार लगभग 2.3 हैक्टेयर है और 70% जिहड़े किसान हैं उन्हां दे जिहड़े खेत हैं 2 हैक्टेयर तो भी घट है। इन्ने छोटे खेत हैं। जेकर तुसीं इहनूं अमरीका नाल कंपैरिजन करो, अमरीका विच 122 हैक्टेयर औसत आकार दे खेत हैं। कितना डिफरेंस है, किथे 122 किथे 2.3। तो भारत विच खेतां दा या जोतां दा औसत आकार 2.3 हैक्टेयर है, जबकि अमरीका वर्गे विकसित देश विच 120 हैक्टेयर है औसत आकार। ताई वो अपनी जिहड़ी उत्पादकता वो बहुत घट है, क्योंकि छोटे खेतां दे आपां खेती दे आधुनिक ढंगां दा प्रयोग नहीं कर सकते, मशीनां दा प्रयोग नहीं कर सकते, ट्यूबवेल नहीं ला सकता एक पर्टिकुलर किसान। इस करके एक कारण बन जाता है बहुत बड़ा, आधुनिक तकनीकां साइंटिफिक जो एग्रीकल्चर है उसनों अप्लाई नहीं कर सकते, खेतों का छोटा आकार। तो ये स्टूडेंट संस्थागत तत्वों के पहला पॉइंट, वैसे तीसरा है। चौथा जिहड़ा पॉइंट है कॉमन चौथा है, वैसे दूसरा है भूस्वामित्व प्रणाली, लैंड टेन्योर सिस्टम। आजादी तो पहला ब्रिटिशर्स ने भू स्वामित्व प्रणालियां चलाइया सी। जमींदारी प्रथा, महलवारी प्रथा, रैतवारी प्रथा। भूमि दे जो एक्चुअल मालिक किसान नहीं होंदे सी। आजकल भी भारत विच कई हिस्सों दे विच इस तरह का सिस्टम देखने को मिलता है कि भूमि का मालक कोई होर है
पर जो खेती कर रहा है वो कोई होर है। जो खेती कर रहा है उसनू मालकाना हक नहीं मिला है, वो किसी तो खेती ठेके ते लैके खेती कर रहा है, तो उस दे नाल उहदी अनिश्चितता बनी रहती है। उन्होंने पता है भी इस खेती ते मेरा मालकाना हक नहीं है, जदों मालिक चाहूगा मैनू खेती तो बेदखल कर दूगा, तो वो अपने पूरे दिल दे नाल उस खेती नू सही तरीके नाल फसलों लायक तैयार नहीं करता, इस करके उत्पादकता घट जाती है। तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण है भू स्वामित्व प्रणालियां। तो ये 4 पॉइंट स्टूडेंट्स आप डिस्कस किए हैं। भूमि ते जनसंख्या का दबाव, समाजिक वातावरण, खेतों का छोटा आकार, भू स्वामित्व प्रणालियां। डाटा जरूर लिखा करो, इंडियन इकोनॉमी च डाटा बहुत वैल्यू रखता है, डाटे को अंडरलाइन कर दिया करो स्पैशल तौर पर। तो मैं जिथे जिथे डाटा बनता है उत्थे एंटर करता हाँ, तो तुसी डाटा जरूर लर्न करना है। हुण टेक्निकल फैक्टर्स, तकनीकी कारण आ गए, ये बड़े सौखे हैं। फर्स्ट है सिंचाई दियां घट सुविधावां। भारत जिथे खेती ते 70% जनसंख्या निर्भर करती है, उन्हां दी आजीविका या रोजी रोटी खेती तो मिलती है, उत्थे खेती की जो हालत है वो पिछड़ी हुई है। उसका एक सब तो बड़ा कारण होर भी है कि भारत विच जो खेती है उस ते सिंचाई की सुविधावां बहुत घट है। हुण तक 40% जिहड़ा एरिया है, जिहड़ा शुद्ध जिहड़ा अपना बीजा होया खेतर है, उस ते सिर्फ 40% हिस्से ते ही सिंचाई की सुविधावां है, इरीगेशन फैसिलिटी है। देखो आजाद होए किन्ने साल हो गए, उस तो बाद भी भारत विच 40% एरिया ही जो खेती जिंदे ते हुंदी है वो सिंचाई की सुविधावां दे हेठां आंदा है, इरीगेशन फैसिलिटी जिहड़ी। इस करके भारतीय खेती मानसून ते डिपेंड करती है, वर्खा ते डिपेंड करती है, और भारतीय खेती नूं मानसून का जुआ भी कहा जाता है, गैंबल ऑफ मानसून। जे चंगी वर्षा होगी, टाइम ते आ गया मीह, तां फसल वधिया हो जाती है, नहीं तो फसल खराब हो जाती है। तो इस करके ये भी एक कारण है सिंचाई दियां सुविधावां दी घाट होना, लैक ऑफ इरीगेशन फैसिलिटी इंग्लिश से कह सकते हो। पुराने खेती अंतर, पुराने खेती यंत्र, ओल्ड मीन्स ऑफ एग्रीकल्चर। जो खेती यंत्र है वो पुराने तरीके दे यूज होंगे हैं। हजे भी भारत विच लकड़ी दे बने या लक्कड़ दे बने हलां दे नाल, दातरी दे नाल, कई दे नाल, इन्हां नाल खेती की जाती है। खेती यंत्र बहुत पुराने हैं। जो आधुनिक यंत्र है, ट्रैक्टर है, कंबाइंस है, होर मशीनरी है एग्रीकल्चर की, वो बहुत घट यूज होती है। वड्डे जिहड़े किसान है, अमीर किसान है, वो तो उन्हों प्रयोग कर लेंगे हैं। एक जो मार्जिनल फार्मर है, बहुत छोटा फार्मर है, जिंदे कोल जमीन 2 हेक्टेयर तो भी घट है, वो बेचारा नहीं यूज कर सकता। तो हजे भी भारत में खेती के पुराने यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। ये भी भारतीय खेती के पिछड़ेपन का कारण है। याद रहे आपां भारतीय अर्थव्यवस्था बारे पढ़ रहे हैं, आपां सारे पंजाब च रहने हैं। पंजाब के जिहड़े फार्मर हैं, किसान हैं, मोस्टली समर्थ है, आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करते हैं। पंजाब एग्रीकल्चर विच काफ़ी अगे है, पहले 1-2 स्थानों के आता है। तो पंजाब की खेती और कई राज्यों के कई जिहड़े एरियाज हैं उन्होंने खेती विच लॉट ऑफ डिफरेंस है। हजे उत्थे बहुत बैकवर्ड है एग्रीकल्चर। अपने इत्थे तो हरी क्रांति का एक पॉइंट रहा है, हब रहा है। अपना तो जो उत्पादन है बहुत ज़्यादा है, कणक का उत्पादन, चौल का उत्पादन पंजाब दे विच मूरी राज्यों से पंजाब आंदा है, और पंजाब नूं इसे करके अन्न दा भंडार कहा जाता है। तो पंजाब की खेती तो काफ़ी उन्नत खेती है। आपां गल कर रहे हैं सारे इंडिया की, सारे भारत की। तो भारत की जिहड़ी खेती है, कॉमन जिहड़ी एग्रीकल्चर है, वो पिछड़ी हुई है। उसके कारण है पुराने खेती यंत्र के नाल ही
खेती के पुराने तरीके, ओल्ड मैथड ऑफ कल्टीवेशन। भारत में खेती के पुराने तरीकों की वरतों की जाती है, यानी कि आधुनिक तकनीक का प्रयोग नहीं किया जाता। रोटेशन ऑफ क्रॉप्स, फसलों की अदला बदली करके नहीं फसलें बीजी जांदियां। एक रूटीन बनया है, इस बारी आ फसल बीज लो, अगली बारी हो, फिर हो, यानी कि रोटेशन ऑफ क्रॉप्स, साइंटिफिक एग्रीकल्चर ते जोर नहीं दिता जाता। तो यह भी एक कारण है। अपर्याप्त ज्यादा उपज वाले बीज, यानी कि HYV सीड्स, HYV हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, उन्नत किस्म के बीज, इन्हां दा जिहड़ा प्रयोग है वो बहुत घट होंदा है। ये महंगे होंदे हैं। जो अमीर किसान है वो तो इन्हां दा प्रयोग कर लेंदे हैं, पर जो गरीब किसान है जिन्हां कोल जमीन बहुत थोड़ी है, 2 हेक्टेयर तो भी घट है, वो उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग नहीं कर सकते। और सारे भारत से उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग घट होंदा है। यह भी एक कारण है खेती के पिछड़ेपन का। खादां की कमी, नो डाउट हरी क्रांति तो बाद 1967-68 ਦੇ ਵਿੱਚ हरी क्रांति आई सी, खेती पदार्थों में 25% वाधा हो गया सी ਇੱਕੋਦਮ। पर यह है कि यह सिर्फ 5 राज्यों और 5 फसलों के विच ही आया सी, पर इस तो बाद इस इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ है, पर उन्ना नहीं ਵਧਿਆ। अजे भी रसायनिक खादों का प्रयोग उन्ना ज़्यादा नहीं हो रहा, खादों का पूर्ण प्रयोग नहीं हो पाता, इस करके भी भारतीय खेती पिछड़ी हुई है। यह भी एक कारण बनता है। दोषपूर्ण विक्री प्रणाली, विक्री प्रथा कह लो, विक्री प्रणाली कह दो, डिफेक्टिव मार्केटिंग सिस्टम। भारत में जो मार्केटिंग सिस्टम है वो बहुत डिफेक्टिव है। सरकार और किसान के सीधा तालमेल नहीं है। रेगुलेटेड जी मंडियां हैं, रेगुलेटेड मार्केट है, वो घट है। तो यह भी एक कारण बनता है दोषपूर्ण विक्री प्रणाली। किसान को अपनी उपज का सही कीमत, सही लाभ नहीं मिल पाता। किसान जिन्नी उपज करता है उसका कुछ हिस्सा विचोलिए खा जाते हैं, क्योंकि भारत विक्री प्रणाली दे विच समस्याएं हैं, कठिनाई है। सही समय पर विक्री नहीं होती, जो स्टॉक करता है तो गोडाउन्स नहीं होंगे, प्रॉपर नहीं होंगे। पंजाब की थोड़ी सिचुएशन वखरी है, थोड़ा जिहा उन्नत किस्म की खेती होती है पंजाब से, पर आप सारे इंडिया की गल कर रहे हैं तो तुहानूं आ पॉइंट्स लिखने पैणगे। फसलों दी बीमारियां, फसलों दी बीमारियां भी आम है। टिड्डी दल आ जाते हैं, फसल ते अटैक कर देंगे हैं, फसलां बीमार रहिंदी हैं या फसलां बीमार हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं। कई बार फसल बिल्कुल पक्के तैयार है, कोई बीमारी पै जाती है तो उन्हें अपने कोल पेस्टिसाइड और इंसैक्टिसाइड नहीं है, प्रॉपर महंगे हैं, वो आम किसान यूज़ भी नहीं कर सकता। तो इस करके ये है फसलों दी बीमारियां। कमजोर पशु, बहुत सारे राज्यों में पशुओं की सहायता नाल खेती की जाती है। पशु जोड़े हैं वो कमजोर हैं, उन्होंने पूरी जी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दे पाते, तो भी एक समस्या पैदा हो जाती है। मिट्टी के दोष, हर राज विच, हर एरिया दे विच मिट्टी जी है उन्नी प्रॉपर उपजाऊ नहीं है, फर्टाइल नहीं है। कुछ राज्यों के विच कई जगह ते मिट्टी बहुत अच्छी फर्टाइल भी है, जिथे नदियां तो डेल्टे तो मिट्टी बनी हुई है, जिथे मैदानी इलाका है उत्थे वधिया है। पर बहुत सारे इलाके जिहड़े इहो जिहे हैं जिथे मिट्टी के बहुत सारे दोष पाए जाते हैं, मिट्टी दे विच कई तरह की कमियां हैं, वो फसलों के लायक प्रॉपर नहीं है, ये भी एक कमी है। और लास्ट है साख सुविधाओं का अभाव। साख सुविधाओं का अभाव मतलब लैक ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी। साख सुविधावां प्रॉपर नहीं मिल पादियां। साख सुविधावां दे लई यानी कि पैसा उधार लैण दे लई किसानां नूं डिपेंड रहना पैंदा महाजन ते, आड़तीए ते, रिश्तेदारां ते। टाइम ते वो नहीं मिल पाता, सही कर्जा सही टाइम ते नहीं मिल पाता। जे मिलता है तो बहुत महंगा मिलता है, उन्हां दा व्याज बहुत महंगा है। जिहड़े बैंकिंग इंस्टीट्यूशनस हैं, वित्तीय संस्थावां हैं, वो उन्नी मात्रा च उन्हां नूं कर्जा नहीं दे रहे, तो उहदे च बहुत सारी समस्याएं हैं। तो स्टूडेंट्स ये सी अपनी खेती की समस्यावां। तो खेती की समस्यावां नूं या खेती के पिछड़ेपन के कारणों नूं 3 पार्ट से वंड के मैं स्टडी कराई है। मनुखी तत्व, ह्यूमन फैक्टर, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर, संस्थागत तत्व, और दूसरे हैं टेक्निकल यानी कि तकनीकी तत्व। इन्हां दे पॉइंट्स हैं। तुसीं चाहो तो इस तरह ही लिख सकते हो जिवें मैं लिखाया है, डिज़ाइन किया है।
ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਿਲੈਕਟਡ ਪੁਆਇੰਟਸ ਚੱਕ ਕੇ 7-8 ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭੂਮੀ ਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਦਬਾਅ, ਇਹਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਮਾਜਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੋਤਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਆਕਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭੂ ਰਾਜਸਵ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮੀ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ, ਅਪਰਯਾਪਤ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਪ੍ਰਯੋਗ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਾਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਅਭਾਵ। 5-6 ਅੱਛੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਸਟ ਵੇ ਹੋਊਗਾ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਚੈਨਲ ਕਲਾਸਿਕ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ ਜੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ। ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਜਲਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। 1 ਜਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। तो ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक्स ए लॉट।